Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. आज के वीडियो में I'm going to be doing modern physics start to end for JEE Mains. Theory पूरा कवर करेंगे and हर concept के साथ I will also solve a corresponding PYQ last few years के. So उससे तुम्हारे पास एकदम confidence आ जाएगा by the end of the lecture that you not only have understood the concepts but also you know how to apply them in the previous year questions. ठीक है? So modern physics is one of the highest weightage chapters. Last few years में देखा गया है JEE Mains में, it is one of the highest weightage chapters. So it's very important that you understand how to solve the questions in the PYQs because they are very scoring, एकदम formula based है as we will see. As long as you know the formula, the PYQs will be very easy or it is going to be free marks for you in your JEE Mains. ठीक है? So we're going to start off with atomic model. उसके बाद we are going to go on to photoelectric effect, फिर X-rays, matter waves, X-rays, nuclear physics, इस तरीके से अपन कवर करेंगे. Alright, so I hope you're as excited as I am. Let's go! So atomic model में we should know about Rutherford's model. इस पे actually question आया है. So Rutherford's model straightforward है. He basically did or he proposed the experiment of alpha particles going through a gold foil and he measured कि कितना scattering हो रहा था. तो alpha particles सब directions में scatter हो रहे थे. ठीक है? Then he proposed the model कि मेरे पास atom में एक nucleus है and उसमें positive charge है and you have electrons revolving around it. This was proposed by Rutherford. So कोई alpha particle है, it will get deflected because of the Coulomb repulsion. ठीक है? तो कितना डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज JEE 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड. जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिड नॉट नो द फॉर्मूला और फ्री मार्क्स चले गए. सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला कि कोई जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास कोई दो चार्जेस है Q डैश, तो Q डैश फिक्स्ड है and बहुत दूर far away this Q is very far away और उसको कुछ velocity V naught दे दिया गया. This distance is B. B is called the impact parameter. ठीक है? Measured from the line passing through Q dash. So of course दोनों positive charge मान रहे हो, basically दोनों like charges मान रहे हैं, so they will repel. ठीक है? इस तरीके से repel होगा. तो कितना repulsion हुआ, जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइनली वो रिपेल होके ऐसे जाएगा. तो कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, लेट मी कॉल इट डेल्टा. सो tan डेल्टा बाय 2 इज गिवन बाय Q डैश डिवाइड बाय इसका मास, इस पार्टिकल का मास m है, v नॉट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, k इज आवर यूजुअल. So this comes from our electrostatic potential energy and mechanics से थोड़ा आता है. ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन वैसे एडवांस्ड थियोरी में पढ़ाना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो दिस फॉर्मूला. Q dash is the fixed charge, Q is the incoming charge with velocity V naught, delta is the angle of deviation. ठीक है? So अपने केस में Q will be played by the role of alpha particle and Q dash will be the nucleus. ठीक है? And m is the mass of the incoming particle. In this case will be alpha particle. तो JEE 2022 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. लेट्स सी व्हाट दैट क्वेश्चन इज एंड लेट्स सॉल्व इट. पहले देखिए. सो ये क्वेश्चन आया था JEE 2022 में. रूट D1 एंड रूट D2 आर इम्पैक्ट पैरामीटर्स, मतलब ये जो B का वैल्यू है वो रूट D1 एंड रूट D2 फॉर स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ 60 एंड 90. सो बेसिकली डेल्टा हियर इज माय स्कैटरिंग एंगल. अल्फा पार्टिकल कितना स्कैटर हो रहा है. ठीक है? And this is for the alpha particle striking the gold foil. ये क्वेश्चन में लिखा गया था. So if D1 is equal to X D2, find the value of X. बहुत ही straightforward है. Let's do this question just using this formula. तो ये formula याद रखना है. ठीक है? This formula we have to remember, something that majority of students did not know, did not have knowledge about this formula when they gave the exam 2022 में. But let's do this. तो for root D1 impact parameter, scattering angle कितना है, 60 degree. So tan of 60 by 2. divided by tan of 90 by 2 because tan delta by 2 is inversely proportional to impact parameter है ना, बाकी सब तो constants है.
तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट d2 डिवाइड बाय रूट d1, ठीक है, इनवर्स रेशियो में है tan डेल्टा बाई 2. सो ये कितना बन गया, tan 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3, tan 45 इज 1, सो 1 बाय रूट 3 इज रूट d2 बाय रूट d1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दूँ, सो मेरे पास आ जाएगा d1 इज इक्वल टू 3d2 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 3. तो एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड स्कोरिंग क्वेश्चन, बट ओनली इफ यू नो द फॉर्मूला, राइट. सो ये मेक श्योर यू राइट दिस डाउन समवेयर इन योर नोटबुक एंड मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. देख लो. लेट्स कम टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर सेड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, दैट इज करेक्ट. But he also gave another postulate, the angular momentum of the electron or of the system is quantized. ठीक है. So इसका अगर मैं मास m बोलूँ, let's say इसका कुछ स्पीड v है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ले रहे with atomic number z, so ze will be the charge of the nucleus and let's say ये radius r है. तो दो इक्वेशंस, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस अपने को लिखना है. वन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा, k ze into E, so ZE square k q1 q2 ZE into E divided by R square should provide the centripetal acceleration, correct. And angular momentum mvr is the angular momentum of the electron about the center, should be quantized. And quantization क्या है, n into h by 2 pi, where n is an integer, h is my Planck's constant. ठीक है. तो ये दो इक्वेशन से we theoretically get v and r. तो r जो रेडियस है वो आ जाता है r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जो अपन याद रखेंगे वेर r नॉट ये सब कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में आ जाएगा. यू कैन एलिमिनेट वेलोसिटी एंड गेट r इफ यू वांट द फुल एक्सप्रेशन, बट अपने लिए दिस इज सफिशिएंट. एंड r नॉट इज कॉल्ड द बोर रेडियस, और इट इज द रेडियस ऑफ द n इक्वल टू 1 लेवल व्हेन z इज इक्वल टू 1, मतलब किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आता है, ये अपन याद रखेंगे. एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10⁻⁻10 मीटर्स. ठीक है. और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर इस इक्वेशन से देखो v इज प्रोपोर्शनल टू n बाय r, है ना, एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, करेक्ट. तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूँ v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n. ठीक है. तो अपने को ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे अपन, बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चंस में रेशियो पूछ लेंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट. तो ये रेशियो अपन याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ऑलराइट, देख लो. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन JEE 2023. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द फॉर्मूला. स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड. फाइंड इट्स स्पीड इन द थर्ड ऑर्बिट. इतना पूछा गया था क्वेश्चन. Okay, so all we need to know is the relation that velocity of the electron or the speed of the electron was proportional to z by n. अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z तो एक कांस्टेंट हो गया. So basically I can just say that the speed is proportional to 1 by n. ठीक है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनवर्स रेशियो में प्रोपोर्शन है. ठीक है. So can I say that speed in the third orbit divided by speed in the 7th orbit would be equal to 7/3, inverse ratio, है ना. So speed in the third orbit would be 7/3 times the speed in the 7th orbit. कितना दिया, 3.6 × 10⁶. ठीक है. So ये बन गया 8.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. राइट, 1.2 × 7 is 8.4. ठीक है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं यार, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, बट प्रोवाइडेड यू नो दैट रिलेशन. तो ऐसे JEE मेंस के क्वेश्चंस में फॉर्मूला फटाफट स्ट्राइक होना चाहिए, दैट इज द की. बाकी फिर तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड इट्स प्रीटी सरप्राइजिंग कि एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है एंड फिर भी स्टूडेंट्स मेस इट अप, आइदर कैलकुलेशन मिस्टेक्स और फॉरगेटिंग द फॉर्मूला. पर लेट्स डू दिस क्वेश्चन. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट इज r, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, एंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ r. एज सिंपल एज दैट, क्योंकि अपने को पता है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या, n स्क्वायर बाय z. अब z तो एक कांस्टेंट है, एक ही एटम की बात चल रही है, सो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सो रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस इन द सेकंड ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर.
So radius in the third orbit should be equal to 9/4r and that's your answer. ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस गिवन थे उसमें से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो. Now let's talk about the energy of the electron levels. So energy कितना हो जाएगा, एक तो मेरे पास जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस r है उसके कारण एक कूलम पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना हो जाएगा -kZe²/r. Why the negative sign? Because electron is negatively charged. k q1 q2 by r यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है. बट दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सी बिकॉज दिस mv² इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एलिमिनेट, क्योंकि मेरे पास वो इक्वेशन है kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स वाला. तो mv² का वैल्यू कितना हो गया, एक r यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ये चीज mv²/r हो गया. सो दिस बिकम्स करेक्ट, mv² is kZe²/r into half minus this. So this is my energy levels, all right, energy of the orbit of radius r. अब r का proportionality क्या था, r was proportional to n²/z. So energy would be proportional to, देखो n²/z, तो ऊपर z² नीचे n², ठीक है, एंड सब कॉन्स्टेंट्स आते हैं मिला के वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, जो अपन याद रखेंगे, इंटू z²/n². डोंट फॉरगेट नेगेटिव साइन है, ठीक है. सो ये मेरा एनर्जी लेवल्स है जो ऑफ कोर्स वी विल रिमेंबर. ऑलराइट, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल n = 1, उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, z = 1 तो है ही हाइड्रोजन एटम के लिए, n = 1 मतलब एनर्जी वुड बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n = 2, 13.6 divided by 4, 3.4, so energy would be -3.4 electron volt. n = 3, 13.6 divided by 3 का स्क्वायर 9, so around 1.5 -1.5 electron volt and so on, ठीक है. तो ये तीन वैल्यूज तो अपन याद रखेंगे. So what happens is, इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. तो सपोज जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, सो इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. और कितना एनर्जी होगा उस फोटोन का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. ओके, so whenever an electron transitions from a higher energy level to a lower energy level, it is going to emit a photon of the energy difference between those two levels. हो सकता है n = 3 से n = 1 करे, या n = 3 से 2 करे, उसके करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकल सकते हैं. ऑलराइट, सो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है. सो फोटोन हैज एनर्जी which can be equated to hc/λ, where h is my Planck's constant, c is my speed of light and lambda is the wavelength of the photon, ठीक है. सो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मैं hc/λ इक्वेट करके एक अच्छा सा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज रिडबर्ग फॉर्मूला और रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जो अपन करते हैं. पहले ये देखो, सो लेट्स से कि आई हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लेट्स से सम n2 to n1 स्टेट, ठीक है. तो फोटोन निकलेगा जिसका एनर्जी hc/λ होगा. सो hc/λ शुड बी इक्वल टू द लॉस इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. तो इनिशियल एनर्जी कितना था, -13.6 z²/n², माइनस फाइनल एनर्जी कितना, -13.6, करेक्ट. एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू 1 वोल्ट. वही है बस, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन. 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs into 1 volt joules, correct. 1 coulomb into 1 volt charge into potential is energy. SI यूनिट्स में एनर्जी का क्या यूनिट्स होता है, जूल्स, ठीक है. तो ये रिलेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, I get 1/λ is equal to some constant into this term
तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सब इस कांस्टेंट में चला गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.09 इंटू 10 पावर 7। यूनिट्स क्या हो जाएगा, 1 बाय मीटर हो जाएगा, करेक्ट, 1 बाय वेवलेंथ का यूनिट्स। ठीक है, ऑलराइट, सो ये मेरा रिडबर्ग इक्वेशन हो गया या रिडबर्ग रिलेशन हो गया फॉर द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ द लेवल फ्रॉम विच इट इज फॉलिंग एंड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज और डिफरेंट लेबलिंग ऑफ सीरीज डिपेंडिंग ऑन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करा है, लाइक लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो बात करता है। पहले ये देख लो, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हाइड्रोजन एटम में सपोज द ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम सम n टू द ग्राउंड स्टेट विच इज n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब ट्रांजिशन अकर कर रहा है तो क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू n1 is the final state, n2 is the initial state। ठीक है, so n1 is the lower state, n2 is the bigger state। तो n1 का वैल्यू 1, ठीक है, z का वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 रखेंगे अपन हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये जो रिलेशन है, दिस डिस्क्राइब्स द सीरीज ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स दैट कम अंडर द नेम ऑफ लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज मतलब द फाइनल स्टेट इज n इक्वल टू 1। ठीक है, बाल्मर सीरीज के बारे में बात करेंगे, मतलब द फाइनल स्टेट इज n इक्वल टू 2। जो n1 का वैल्यू है, जो n1 का वैल्यू है उसको 2 रखना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला दैट यू यूज फॉर एनी सीरीज। सो इसके जो पॉसिबल वेवलेंथ्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, फाइनल स्टेट बाल्मर में n इक्वल टू 2 है, n1 इक्वल टू 2 है। ओके, सिंपल है। दे कैन आस्क यू लाइमैन में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए आई नीड दिस टू बी मैक्सिमम, करेक्ट। सो तुम ऐसा भी सोच सकते हो, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ hc बाय लैम्डा। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से जो आएगा वो सबसे बड़ा जंप मारेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो फोटोन निकलेगा दैट विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। सो n का वैल्यू अपन इन्फिनिटी डाल देंगे, सो दैट विल सिंपली बी इक्वल टू r। तो लैम्डा मिनिमम वुड बी इक्वल टू 1 बाय r। एंड फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ मींस स्मॉलेस्ट फोटोन, मतलब उस n इक्वल टू 1 के जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है n इक्वल टू 2, वहां से फोटोन आएगा। सो आई विल जस्ट राइट दिस एज 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू r। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 4r बाय 3। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला सबसे कॉमन है। अभी बाल्मर के लिए भी अगर मैंने बोला फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ, मतलब तुम इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 तक लेकर आओगे, करेक्ट। मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा मैंने बाल्मर सीरीज में, तो 3 से 2 तक लेकर आओगे, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स दैट यू कैन हैव फॉर बाल्मर सीरीज। ठीक है, ऑलराइट, देख लो। Let's take a look at a question from 2023, JEE 2023. Wavelength is lambda naught, जो emitted photon है उसका wavelength lambda naught है when electron jumps from second excited state to the first excited state of a hydrogen atom. तो second excited state से first excited state hydrogen atom में जब jump करता है तो wavelength कितना है, lambda naught। तो थोड़ा सा carefully पढ़ना, because second sentence में question में लिखा है if electron jumps from third excited state to second orbit, not second excited state, just second orbit, then the wavelength is 20 lambda naught by x, जिस जहाँ पे अपने को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। वैसे क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नॉट जस्ट नाउ, ऑल्सो इन द एग्जाम, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। सो लेट्स डू दिस। एक ही फॉर्मूला अपने पास वेवलेंथ के लिए, रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 by r is 1 by lambda is r times 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square। z का वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। n1 is the final state, n2 is the initial state। So let's write down। तो पहले तो 1 by lambda naught is equal to Rydberg constant times second excited state से first excited state। second excited state मतलब ground state से 2 ऊपर, मतलब n equal to 3, ठीक है।
First excited state is n equal to 2, second excited state is n equal to 3. So we are going from n equal to 3, मतलब n2 equal to 3 है and n1 equal to first excited state मतलब n1 equal to 2 है. So 1 by 2 square minus 1 by 3 square. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 4 minus 1 by 9, तो 5 by 36, तो this will become 5r by 36. ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 by lambda नॉट का. Okay, now second situation में it's going from third excited state मतलब n equal to 4, so n2 equal to 4 से n1 का वैल्यू क्या फाइनल स्टेट का सेकंड ऑर्बिट मतलब n1 equal to 2 है, नॉट सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दिया. जल्दी जल्दी मैं सोचा कि इजी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सब जगह एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर भी मन में अज्यूम करके गलत कर लिया. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल. Alright, so 1 by lambda, the new wavelength is 1 by 2 square minus 1 by 4 square. ठीक है, so 1 by 4 minus 1 by 16, that will just be 3 r by 16. ठीक है, तो बस अभी अपने को रेशियो निकालना, मतलब मेरे पास लैम्डा नॉट का वैल्यू है 36 by 5r एंड लैम्डा का वैल्यू है 16 by 3r. सो r को एलिमिनेट करना है ना, तो r का वैल्यू है 16 by 3 इंटू r का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 by r का वैल्यू कितना है 5 लैम्डा नॉट बाय 36, सो 5 लैम्डा नॉट बाय 36. ठीक है, तो ये देखो कितना बन जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम 4 4 4 9 20 लैम्डा नॉट बाय 27, सो x का वैल्यू 27. ठीक है, सो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखना है एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ओके, दिस इज व्हाई आई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड दिस प्रॉब्लम सो दैट यू कैन गेट अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ पिटफॉल्स, कहाँ पे तुम अटक सकते हो, मार्क्स लूज कर सकते हो, नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो. देखो एक और क्वेश्चन करते हैं JEE 2023 से ही. लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, एटम गेट्स एक्साइटेड, एंगुलर मोमेंटम in excited state is given by this x by pi into 10 power minus 7 electron volt seconds. Find the value of x and h का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया है वही यूज करना, खुद का वैल्यू मत यूज करना, c का वैल्यू भी दिया हुआ है. ठीक है, सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में सी इट्स कंबाइनिंग द एनर्जीज वाला फॉर्मूला एज वेल एज द एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर आउट करते हैं कि एटम किस लेवल तक एक्साइट होता है. सो इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे तो कितना एनर्जी है उसका -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना मिला उसको 12.75, कितना बन जाएगा दिस प्लस दिस कितना देखो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट, देखो कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ. ठीक है, सो फाइनल स्टेट में एनर्जी इज दिस मच, आई नो आई कैन राइट इट एज करेक्ट, ये तो मेरा फॉर्मूला है nth लेवल का एनर्जी. अब z का वैल्यू कितना है हाइड्रोजन एटम का 1, सो n स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 0.85, 1360 डिवाइड बाय 85, इसको 17 से डिवाइड करूँ तो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 80, 5, 16, n का वैल्यू 4, सो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा nh by 2 pi, सो 2h by pi. ठीक है, अब बस यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जो दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 15. ठीक है, सो 2 इंटू ऑलराइट, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8.28 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. कुछ मिस्टेक किया मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ पर -17 होना चाहिए, 7 नहीं. ठीक है, 17 दिया था क्वेश्चन में, माई मिस्टेक. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 828 बाय पाई इंटू 10 पावर माइनस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. सो माई एक्स का वैल्यू इज 828. ऑलराइट, सो दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट दो डिफरेंट चीज़ें कंबाइन करते हैं. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, देख लो. कभी कभार रिकॉइल स्पीड भी पूछा जा सकता है. तो जैसे कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक्साइटेड स्टेट में है, एंड इट रिलीजेस फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. तो हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल स्पीड कितना होगा? तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो फोटोन का मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है h बाय लैम्डा. एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, बट मोमेंटम कितना होता है h बाय लैम्डा. वही फोटोन और वही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा. दिस इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम.
तो यहाँ से तुमको वेलोसिटी निकल जाएगा। क्यों इक्वेट किया? बिकॉज इनिशियली हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे था एंड द हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम हैज टू कैंसिल आउट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन बिकॉज टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। और 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला तो अपने पास है ही, यही वाला। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कोई n इक्वल टू 4 स्टेट से n इक्वल टू ग्राउंड स्टेट तक डी एक्साइट कर रहा है हाइड्रोजन एटम, फाइंड द रिकॉइल स्पीड। ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट गेट 1 बाय लैम्डा, दिस यूज दिस, पुट इट हियर एंड स्पीड निकल जाएगा ऑफ द रिकॉइल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वेरी सिंपल, मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड। देख लो, लेट्स कम टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सपोज मेरे पास एक मेटल प्लेट है, 2 मेटल प्लेट्स हैं, प्रेफरेबली एनक्लोज्ड इन अ वैक्यूम कंटेनर। ठीक है, एंड यू शाइन लाइट ऑन दिस मेटल प्लेट। लेट्स से फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है, न्यू इज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेट एंड दिस फिनोमेना, इसको क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे एब्जॉर्ब द फोटॉन्स इन द इंसिडेंट लाइट एंड दे आर एबल टू कम आउट। सो कितने एनर्जी से आते हैं? द काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग आउट इज इक्वल टू h nu माइनस 5। सी एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू बोल दो, फ्रीक्वेंसी स्पीड बाय वेवलेंथ, करेक्ट। फाई क्या है? मेरा वर्क फंक्शन। सो फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच डिटरमाइंस कि कितना एनर्जी लॉस होने वाला है इलेक्ट्रॉन का व्हाइल कमिंग आउट। अगर इलेक्ट्रॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन एब्जॉर्ब किया, it must lose some energy when it comes out because positive ions है, it has to overcome the attraction, so there is a fixed amount, minimum amount that the electron has to lose जब वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो कितना मिनिमम अमाउंट है? इतना, that is called the work function। इससे ज़्यादा भी लूज कर सकता है, so obviously kinetic energy और कम हो जाएगा, but this is the maximum possible kinetic energy that the electron can have। ठीक है, सो इट अब्जॉर्ब्स 1 फोटोन का एनर्जी, लूजेस दिस मच, मिनिमम पॉसिबल दिस मच लॉस होता है एंड इतने से बाहर आता है। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन जनरल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल लाई बिटवीन 0 to h nu माइनस 5। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू सी कि ऑब्वियसली मेरे को जो फोटॉन्स है इंसिडेंट, उसका एनर्जी मस्ट बी, लेट मी राइट इट हियर, एबल टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, उतना मिनिमम एनर्जी तो देना ही पड़ेगा फोटोन को, एनर्जी फोटोन के पास एनर्जी रहना ही पड़ेगा इतने के बराबर। सो h nu must be greater than equal to 5, so nu must be greater than equal to 5 by h। this is called the threshold frequency, this is like the minimum frequency of the incident light that the incident light must possess in order to produce photoelectric effect। ठीक है, इससे कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमेना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देख लो, लेट्स लुक एट सम ग्राफ्स। सो इफ आई प्लॉट करंट वर्सेस द वोल्टेज अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड जो करंट फ्लो करेगा, दिस करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग टू द राइट, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग करंट इज फ्लोइंग टू द लेफ्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे ये करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट करना है, तो ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है। IS is called a saturation current, that is the maximum current that we can have in the circuit। ठीक है, so what happens is कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं, आगे के इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिपेल द पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई कोई इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, बट जितना ज़्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू ओवरकम दिस रिपल्शन एंड रीच द अदर प्लेट। इसलिए जब पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ते जाता है। ठीक है, एट वन पॉइंट सारे इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ओवरकम द रिपल्शन एंड रीच दिस एंड। तो उससे ज़्यादा तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है सिस्टम में, करेक्ट।
इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले, अगर सारे पहुंच गए तो उससे ज़्यादा करंट अपने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर आफ्टर अ पॉइंट द करंट बिकम्स अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर एबल टू रीच एंड कंप्लीट द सर्किट। ऑलराइट, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। Vs is called the stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब तुम पोलैरिटी इसको रिवर्स करो इस तरीके से, अगर मैंने लगा दिया। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे देखो क्या है, करंट का वैल्यू कितना है, 0। सो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल, नोटिस दैट इट इज इन द ऑपोजिट पोलैरिटी टू दिस, सो इट इज डीसेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल डीसेलरेट, करेक्ट, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पर है लेफ्ट वाला प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन्स विल डीसेलरेट। सो इफ the fastest electron is not able to reach the other plate, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। So therefore stopping potential is the potential at which the minimum potential at which no electron is able to reach, मतलब fastest electron is also not able to reach. So let's see fastest electron को कितना एनर्जी होता है, h⁻⁵, वो सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, Vs, तो कितना एनर्जी लॉस होगा, E टाइम्स Vs, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सो Vs का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट। सो as electron goes from positive potential to negative potential, potential energy नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी विच इज चार्ज इनटू पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो चार्ज इनटू दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल बिकम पॉजिटिव। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, उतना काइनेटिक एनर्जी लॉस होना चाहिए, ठीक है। सो पोटेंशियल, ये जो Vs निकला दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड वी प्लॉटेड ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस बिकॉज उसका पोलैरिटी उल्टा है कंपेयर्ड टू द यूजुअल पोलैरिटी, ठीक है। अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आता है। सो इसका जो स्लोप है, थीटा बोलता हूँ, tan थीटा इज h/e, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो कोई भी मेटल के लिए h and e, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, e मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, दे आर कांस्टेंट्स, ठीक है। सो you'll all have straight line graphs for any metal. What will change for different metals is this y-intercept which is minus phi by e. Work function depends on the metal, ठीक है। देख लो, एक और ग्राफ है saturation current versus intensity. What is intensity? Incident intensity of the photons. Intensity is what? Power per unit area. तो power is energy per unit time. So let's say मेरे पास n photons पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। सो पर सेकेंड कितना एनर्जी आ रहा है, n इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम इज माई इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ जो सैचुरेशन करंट है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। जितना फोटॉन्स इंसिडेंट है पर सेकेंड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा पर सेकेंड, उतना ज़्यादा करंट हो जाएगा। So therefore, intensity is proportional to the number of photons per second. Saturation current is proportional to the number of photons per second. So saturation current is proportional to intensity. यहाँ पे अपन ने frequency को fix करके रखा है, ठीक है। Frequency fix करके intensity is proportional to n. तो इस तरीके से ग्राफ होगा which will go through the straight line. Alright? तो ये ग्राफ भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्राफ देखो, करंट वर्सेस वोल्टेज एंड अलग अलग इंटेंसिटीज पे देखो, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के, ठीक है। आपने को पता है इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के। सो ग्राफ इस तरीके से आएगा वेयर I2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। सो ये थोड़े ग्राफ्स अपने को पता होना चाहिए, देख लो। Let's look at a question from J2022. Kinetic energy of the emitted electrons E when the light incident has wavelength lambda
अगर उस एनर्जी को डबल करना है टू डबल द काइनेटिक एनर्जी कितना वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट लेट्स अप्लाई द इक्वेशन दैट वी नो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electron is E when light incident has wavelength lambda। अब अगर कुछ नहीं बोला गया then we have to assume this is the maximum possible kinetic energy because otherwise अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जेई मेंस में ऐसा काफ़ी बार लैंग्वेज एकदम क्लियर नहीं होता है, बट कॉन्टेक्स्ट से अपने को डिड्यूस करके आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी डबल चाहिए, सो 2E should be equal to let's say some lambda dash which is the new wavelength that we require minus the same work function जिस मेटल पे अपन इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट, ठीक है। अब वर्क फंक्शन तो अननोन है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड सॉल्व। सो मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, सो 1 माइनस 2 अगर मैं करूँगा सो आई हैव 2E माइनस E इज इक्वल टू E दिस माइनस दिस, मतलब HC बाय लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस HC बाय लैम्डा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, HC बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू, एंड यहाँ से तुमको लैम्डा डैश आ जाएगा। तो लैम्डा डैश का वैल्यू वुड बी HC लैम्डा डिवाइडेड बाय HC प्लस E लैम्डा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है, बट इस इक्वेशन को अपने को यूज करना है, ठीक है। देख लो, लेट्स डू क्वेश्चन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। JEE 2023 में आया था। A metal surface is illuminated with the light of wavelength lambda and the stopping potential is V naught. If the wavelength is made 2 lambda, double कर दिया, then the stopping potential becomes V naught by 4. Find the threshold wavelength. Threshold wavelength मतलब जो threshold frequency था, उसको nu TH से represent कर रहा हूँ, वो कितना था, phi by h. So threshold wavelength is the corresponding wavelength C by the threshold frequency, ठीक है, मतलब HC by phi। तो ये बेसिकली मुझे वर्क फंक्शन चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन चाहिए। वर्क फंक्शन एक ही इक्वेशन में आता है अपने लिए, कौन सा इक्वेशन है वो, इफ इनिशियली द वेवलेंथ इज लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन का क्या रिलेशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज h by E माइनस phi by E, करेक्ट। ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो न्यू को मैं C बाय लैम्डा लिख सकता हूँ, ओके। अब बात करते हैं कितना स्टॉपिंग, जब वेवलेंथ लैम्डा है तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V नॉट। जब वेवलेंथ वेवलेंथ 2 लैम्डा बन गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, V नॉट बाय 4। तो दिस बिकम्स HC बाय 2E लैम्डा। ऑलराइट, मुझे क्या चाहिए, आई वांट phi, आई वांट द वैल्यू ऑफ phi, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस था, ये मोर देन वन करेक्ट था। ऑप्शंस में वेवलेंथ मतलब लैम्डा के टर्म्स में था, 2 लैम्डा 4 लैम्डा बाय 3 ऐसा सब ऑप्शंस था। तो लैम्डा के टर्म्स में ही चाहिए मुझे, तो V नॉट में एलिमिनेट करता हूँ। लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, HC बाई E लैम्डा माइनस 4 टाइम्स दिस, मतलब माइनस 2 HC बाई E लैम्डा, ठीक है, माइनस दिस, सो माइनस 5 बाई E माइनस 4 5 बाई E, करेक्ट। माइनस टाइम्स 5 बाई E माइनस 4 इंटू 5 बाई E, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम HC बाय E लैम्डा शुड बी इक्वल टू, दिस विल बिकम 3 5 बाई E, करेक्ट। सो देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा ये जो फाई का वैल्यू है वो चाहिए मुझे, HC बाय 5 चाहिए ना, तो डायरेक्टली आ गया, HC बाय 5 वुड बिकम 3 लैम्डा, ठीक है। सो माय आंसर वुड बी 3 लैम्डा, ठीक है। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट मैटर वेव्स। तो जैसे फोटोन के लिए आई हैव मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h बाय लैम्डा, ये अपने को पता है, ठीक है। So वैसे ही डी ब्रॉगली डिफाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर, ही सेड कि मैटर आल्सो हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट गिवन बाय द सेम इक्वेशन, कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए भी मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। इसको मैं dB से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी h बाय द मोमेंटम।
राइट, कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसके लिए भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई कैन राइट एज h बाय मोमेंटम. आई कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बहुत बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया जाता है और या पूछा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो आई नो काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आई कैन राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर. आई कैन राइट दिस एज p स्क्वायर बाय 2m. मोमेंटम इज mv, है ना, देखो. So momentum becomes root of 2m into kinetic energy. So this de Broglie wavelength, I can also write it as, ठीक है, ये सब मैटर वेव्स के लिए है. ये वाला फॉर्मूला, ये हाफ mv स्क्वायर फोटोन के लिए मत यूज करना, ठीक है. फोटोन का एनर्जी इस hc by lambda, ठीक है. ये एनर्जी पार्टिकल के लिए मत यूज करना, ऑब्जेक्ट के लिए मत यूज करना. ये एनर्जी सब फोटोन का है. ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो फोटोन के लिए मत यूज करना, ये वाला फॉर्म, ठीक है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ये मैटर के लिए है, फोटोन के लिए hc by lambda है. डोंट यूज इट, डोंट एक्सचेंज इट, ठीक है. देखो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. JEE 2022 का क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड अ फोटोन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब फोटोन का वेवलेंथ. तो ये सब वेरिएबल्स दे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपीएच, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पीपीएच. तो और ये ऑप्शन में से करेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है. सो बेसिकली वी वांट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन एंड मोमेंटम, उनका रेशियो चाहिए मुझे. सो लेट्स सी, बिकॉज दे हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेट्स इक्वेट दैट. फॉर अ photon I can write momentum of photon is h by lambda, correct, and momentum of an electron is also h by lambda. ये लिख सकता हूँ मैं, lambda is d Broglie wavelength. lambda इक्वल है दोनों के लिए, so therefore momentum दोनों का इक्वल हो गया. अब मोमेंटम इक्वल हो गया तो अब एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं. सो बिकॉज दे आर इक्वल, नाउ आई कैन राइट एनर्जी ऑफ, आई यूज दिस रिलेशन, आई कैन राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, p स्क्वायर बाय 2m, करेक्ट. एंड एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकता हूं, hc बाय लैम्डा. बट h बाय लैम्डा क्या है, h बाय लैम्डा इज नथिंग बट मोमेंटम. दोनों का मोमेंटम को मैं p ही लिख रहा हूँ, सेम मोमेंटम है दोनों का. सो h बाय लैम्डा को मैं p लिखता हूँ. एक p कट गया, बचेगा क्या, p बाय 2mc. एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूँ, mv लिख सकता हूँ, ठीक है. सो ये रिलेशन आ गया मेरे पास. एनर्जी का रेशियो इज v बाय 2c, सो आंसर इज b, ठीक है. सो इट वाज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए था, ओके, बट स्टिल अ वेरी डूएबल क्वेश्चन. देख लो. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023 डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर. सो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल and a proton accelerated from rest by the same potential is 1 by root m. So same potential मतलब they acquire, we'll have to figure out कि वो कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते. तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस तुमने एक्सेलरेट किया. सो प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर है एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज हीलियम 2+, तो उसका चार्ज 2E के बराबर है, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन वुड बी E टाइम्स द पोटेंशियल V. अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके थ्रू एक्सेलरेट किया है, सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सेलरेट अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी 2E टाइम्स V, ठीक है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2+, तो उसका चार्ज डबल है ऑफ दैट ऑफ द प्रोटॉन. ओके, तो ये मेरे पास आ गया. अब क्या चाहिए मुझे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो. सो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. सी वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h बाय रूट 2m k, करेक्ट. तो ये बन जाएगा h कट के बन जाएगा रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है. डिनोमिनेटर में है ना ये रूट 2m k, तो उल्टा हो गया, ठीक है. अल्फा का नीचे आ गया, प्रोटॉन का ऊपर आ गया. ऑलराइट, ये 2 भी कट जाएगा. स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा. मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा कितना होगा, 1/4. हीलियम का मास 4 है, सो 1/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 1/2. सो ये बन जाएगा 1/√8,
ठीक है, सो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ऑलराइट, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अपने को ध्यान में रखना कि काइनेटिक एनर्जी भी चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग होगा, एंड मास भी अलग अलग होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट दीस आर स्मॉल पॉइंट्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। देख लो, लेट्स कम टू एक्सरेज। सो यहाँ पर मेरे पास एक कूलिज ट्यूब है, विच इज बेसिकली अ ट्यूब जहाँ पे वैक्यूम है। आई हैव अ मेटल प्लेट बोल दो या मेटल ऑब्जेक्ट बोल दो, जिसको हीट कर रहे हैं। सो दिस इज अ हीटर, and you heat and give the free electrons enough energy to escape the surface of this metal. ठीक है, so that is why this phenomena is called thermionic emission. और thermal energy देके अपन electrons को emit करा रहे हैं, alright? तो यहाँ से electrons निकले, and we have an accelerating voltage that accelerates the electrons to very high speeds, and then they collide with this metal target. As they collide with the metal target, they lose energy. And they lose energy, electrons lose energy in the form of what we call as X-rays. ठीक है, so electrons energy lose करते and they emit X-rays. Alright, so दो तरीके के phenomena होते हैं when the electron decelerates inside the metal target. एक है कि Maxwell's equations tells us that any accelerating charge emits electromagnetic radiation. इसका proof अपने syllabus में नहीं है, but ये factually अपने को पता होना चाहिए कि any accelerating charge emits electromagnetic radiation. तो यहाँ पे electrons accelerate मतलब velocity vector change हो रहा है, तो deceleration is also part of acceleration. ठीक है, so as this electron decelerates, it emits electromagnetic radiation. That is what we call as X-rays. So those are categorized as continuous X-rays. Continuously, electrons are emitting radiation as they decelerate inside the metal target. तो अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट करो, सो वेरियस वेवलेंथ्स आर एमिटेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वेवलेंथ एमिट होता है। एज द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली डिसलरेटिंग, देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स दैट आर एमिटेड। तो इस तरीके से उसका इंटेंसिटी आता है। इंटेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा फोटॉन्स है पर वेवलेंथ, उतना ज़्यादा उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी होगा, करेक्ट। सो इस तरीके से ग्राफ आता है। नाउ देयर इज अ कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ that occurs, that is cutoff wavelength corresponds to, minimum wavelength corresponds to the maximum energy photon, है ना, hc by lambda होता है, करेक्ट। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एनर्जी एक फोटोन को चला गया तो वो फोटोन विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, है कि नहीं। तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फोटोन को चला गया सपोज। सो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर v है तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन करेगा, ev। यहाँ पे इनिशियली भी अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। सो बाय द टाइम इट रीचेस द मेटल टारगेट, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, e times v। So EV, if this entire thing goes to one single photon, that will have the minimum wavelength because it will have the maximum energy, and that photon wavelength corresponds to the cutoff wavelength. This is my cutoff wavelength. इससे कम wavelength मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी फोटोन एमिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज फोटोन एमिट कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से ज़्यादा एमिट कैसे होगा फोटोन, करेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा, राइट। सो देयर इज अ कट ऑफ वेवलेंथ जिससे कम वेवलेंथ के कोई भी फोटोन एमिटेड नहीं है, सो देयरफॉर उसका इंटेंसिटी जीरो है। यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो, ओके, ऑलराइट। सो इस तरीके से ग्राफ आता है। नाउ देयर इज अनदर फिनोमेना दैट अकर्स कि व्हेन द मेटल टारगेट में जो एटम्स है, व्हेन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल टारगेट, ये जो टारगेट है उसके अंदर के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको नॉकआउट कर देता है, उनको नॉक ऑफ कर देता है। So incoming electron collides with the electron of the orbit in the orbit of the target and creates a vacancy. It knocks it out of the orbit and creates a vacancy. जैसे ही vacancy create हुआ, suppose K shell में vacancy create हुआ, तो फिर L shell, M shell, इस तरीके से the electron can transition inside the metal target. Correct? Now we are talking about the transition of the electrons in the orbit. वैकेंसी क्रिएट हो गया, जैसे के शेल में सपोज वैकेंसी क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतने जोर से आया कि इट नॉक्ड आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिट एंड क्रिएटेड वैकेंसी। एक बार वो कोलिजन होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। सो ट्रांजिशंस होगा एंड फोटोन रिलीज होगा। सो एल शेल से के शेल जब ट्रांजिशन होता है तो कौन सा फोटोन रिलीज होगा, वी विल कॉल इट के अल्फा। we'll call the X-ray as K alpha. Alpha मतलब it is coming from one level higher and K is the final state. ठीक है, अगर M से K आया
तो क्या बोलेंगे के बीटा। फाइनल स्टेट के है बट 2 लेवल ऊपर से आ रहा है। अगर m से l आया तो क्या बोलेंगे अपन l अल्फा, l से एक लेवल ऊपर से आया तो अल्फा, ठीक है, एंड सो ऑन। सो सम ऑफ दीज वेवलेंथ्स, जो वेवलेंथ्स है उनके ऑलरेडी कंटिन्यूअस एक्सरेस भी है, बट इन एडिशन टू दोस कंटिन्यूअस एक्सरेस अब ये ट्रांजिशन के कारण एक्सरेस भी निकल रहे हैं। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए फॉर दोस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। सो दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस सम पीक्स, सडन ऐसा पीक्स आएगा, ठीक है, इस तरीके से पीक्स आ सकते हैं। इसमें से अभी कौन सा L वाले वेवलेंथ्स है, कौन सा K वाला सीरीज है, वो अपन डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इफ आई कंपेयर K अल्फा एंड L अल्फा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सी वी नो फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल दैट द एनर्जी लेवल्स गेट क्लोजर। नाउ दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, बट द जनरल ट्रेंड वही रहता है इवन इन एक्चुअल एटम्स कि द एनर्जी लेवल्स कीप गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर एज यू गो हायर। सो m एंड l के बीच में गैप बहुत कम है कंपेयर टू l एंड k, तो k अल्फा का एनर्जी विल बी मोर देन l अल्फा। सो इन जनरल k ग्रुप का एनर्जी इज मोर देन l ग्रुप। सो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द k एक्स-रेस इज लेसर देन द l ग्रुप, ठीक है, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ पर वेवलेंथ किसका कम है? ये वाले ग्रुप का कम है, x एक्सिस पे देखना है, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू द k ग्रुप, दिस विल करस्पॉन्ड टू द l ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से अल्फा बीटा में से कौन सा ज्यादा होगा? इट्स ऑब्वियस दैट एनर्जी ऑफ द बीटा विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ अल्फा, करेक्ट। सो वेवलेंथ ऑफ बीटा विल बी लेसर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा, ठीक है। सो दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू k बीटा, दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू k अल्फा, दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू l बीटा। एक्स एक्सिस पे देखना वेवलेंथ किसका कम है? k बीटा का कम है कंपेयर टू k अल्फा, राइट। यहाँ पर इंटेंसिटी तो मैंने रैंडमली बनाया, वी कांट प्रेडिक्ट दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, दैट इज रैंडम कोलिजन्स हो रहा है। तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट किसका ज्यादा होगा, वो अपन नहीं बोल सकते, वो मैंने रैंडमली बनाया, ठीक है। ऑलराइट, सो ऐसे क्वालिटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रुप क्या है, कौन सा पीक कहाँ पर है, इस तरीके से, ओके। नाउ ये जो एक्सरेस निकले, दीस आर कॉल्ड, ये जो एक्सरेस निकले these are called characteristic x-rays. So दो तरीके के फिनोमेना हो रहे हैं, one is कि वो electromagnetic radiation emit कर रहा है because of its deceleration electron, and the other is because of the transition inside the metal atoms, ठीक है। So continuous x-rays was due to the electromagnetic radiation, and characteristic x-rays is due to the transition of the electrons inside the orbit or inside the atom of the metal target, ठीक है। So दो तरीके के फिनोमेना हो रहे हैं, बाकी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, दोनों फोटॉन्स ही बोल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो वन थिंग टू नोट इज दिस कट ऑफ वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द मेटल टारगेट बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एंड ये जो k बीटा, k अल्फा, l बीटा, l अल्फा का वेवलेंथ है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द accelerating voltage, that only depends on the metal target because it only depends on the energy levels of the metal atom, ठीक है। ओके, देखिए, लेट्स कम टू मोज़लीज लॉ। सो मोज़लीज लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये मोज़ली ने ऑब्जर्व किया था, ऑलराइट। तो ये a and b आर सम कॉन्स्टेंट्स, नोट दैट दे आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, सो a b का वैल्यू नेगेटिव है, सो ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव आई इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। k अल्फा के लिए हर एक सीरीज के लिए k अल्फा, k बीटा, l अल्फा, l बीटा, a and b का वैल्यूज अलग होंगे, ठीक है। सो k अल्फा के लिए थियोरेटिकली अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एज दिस थिंग √3rc/4 where r is my Rydberg constant, c is speed of light and b is approximately 1। तो ये अपन थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऑलराइट, ठीक है। देख लो, लेट्स कम टू न्यूक्लियर फिजिक्स। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले तो वी शुड नो हाउ द रेडियस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर वेरीज विद द मास नंबर। तो सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस कुछ r है एंड मास नंबर a है। मास नंबर मतलब यहाँ पर इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर साथ में मिला के अपन क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है इट इज ऑब्जर्व्ड
that it varies in this manner. A raised to 1/3 के proportional है. R naught is a constant which is around 1.1 to 1.2 Fermi. ये फर्मी मतलब इसको फर्मी बोलते हैं या कभी कभार फेम्टोमीटर भी बोलते हैं. इस 10⁻⁻15 मीटर्स. ठीक है. सो एनसीईआरटी में ये वैल्यू दिया है. वील यूज दिस वैल्यू. अराउंड 1.1 to 1.2 इज फाइन. एनसीईआरटी में 1.2 दिया तो वो अपन वो वैल्यू यूज करेंगे. ओके. सो इसका जो इम्प्लीकेशन है कि इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस. Okay, so can I say, suppose let's say I have m is the average nucleon mass. So proton and neutron का mass almost same होता है. So on an average let's take m, small m. तो कितना total mass आ जाएगा nucleus का? कितने number of nucleons है? A. So m a, correct? Divide by radius 4/3 pi r cube. R cube मतलब r naught cube into a. So can you see it is independent of A. So that is the whole point, that this implies कि the nuclear mass density is a constant more or less as you keep changing the element. अलग अलग elements के लिए अलग अलग nuclei के लिए भी the nuclear mass density is still more or less a constant. ठीक है. तो ये एक important result है. Alright, देख लो. So let's look at a question based on जो अभी अपन ने देखा JEE 2023 में आया था. Ratio of density of 16 ऑक्सीजन वाला न्यूक्लियस जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का, ये वाला न्यूक्लियस टू हीलियम न्यूक्लियस इज व्हाट. तो ये क्वेश्चन पूछा था. सो इतना सा लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है, कुछ सोचना नहीं है. आंसर इज सी बिकॉज वी नो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर. ठीक है. सो वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर इट इज हीलियम और वेदर इट इज एनी अदर न्यूक्लियस, द on an average the nuclear mass density is a constant. ये अपने को याद रखना है. ठीक है. तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इतना लल्लू क्वेश्चन तो नहीं होगा, दे कुछ तो कॉम्प्लिकेट कर दिया, कैलकुलेशन वगैरह करने की कोशिश की. 10 सेकंड्स लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, 10 सेकंड लगेगा आंसर टिक करने में, 20 सेकंड में आगे बढ़ना है अपने को. देख लो. लेट्स टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं. इफ सपोज आई हैव कुछ x मेरे पास न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है. ठीक है. तो वो किससे बना हुआ है? उसके न्यूक्लियस में क्या है? यू हैव z प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z न्यूट्रॉन्स, बिकॉज a तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है. करेक्ट. z इज द एटॉमिक नंबर, सो z प्रोटॉन्स एंड बचे हुए न्यूट्रॉन्स. Alright. So what happens is when you bring these protons and neutrons together, the mass of the system decreases. अब वो क्यों डिक्रीज होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन, जो जिसके बारे में अपन नहीं अपने सिलेबस में नहीं है ज़्यादा. ठीक है. उसका एनालिसिस अपन नहीं करेंगे, बट फैक्चुअली अपने को याद रखना है कि व्हेन यू ब्रिंग दीज प्रोटॉन्स एंड दीज न्यूट्रॉन्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, उसका एनर्जी कम हो जाता है एंड देयरफॉर मास कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलेशन दैट एनर्जी इज mc². तो ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था. कहाँ से आया वो अपन, वो रिलेटिविटी से आता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपन ऑफ कोर्स ये याद रखेंगे. सो लेट्स सी कि कितना एनर्जी लॉस होता है व्हेन यू ब्रिंग दीज टुगेदर. इनिशियली इनका एनर्जी कितना है? z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू c² प्लस इसका एनर्जी कितना है? a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू c². करेक्ट. हर एक प्रोटॉन का mc² है, हर एक न्यूट्रॉन का mc² है. मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थोड़े अलग है तो मैं अलग अलग डिनोट कर रहा हूँ. z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इतना एनर्जी इनिशियली है, इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है तो इतना एनर्जी इनिशियली न्यूक्लियॉन्स का, तो न्यूट्रॉन्स का, तो इतना टोटल एनर्जी है ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ यू ब्रिंग देम टुगेदर, फाइनली यू गेट दिस. तो इसका जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? जो मास ऑफ द x न्यूक्लियस है इंटू c². तो कितना लॉस हुआ एनर्जी का? दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, जिसको BE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो व्हाट डिड वी डू? पहले आइसोलेटेड एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन का सब एनर्जी अपन ने कैलकुलेट किया mc² करके. z प्रोटॉन से तो इतना हो गया, a माइनस z न्यूट्रॉन से तो इतना हो गया. ठीक है. अब फाइनली उनको जोड़ के न्यूक्लियस बना के, न्यूक्लियस का मास अपने को पता है, एक्सपेरिमेंटली बोल दो तो वो कितना है? मास ऑफ द x न्यूक्लियस इंटू c² इज द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. सो इट टर्न्स आउट कि ये दोनों, इनका सम एंड ये इक्वल नहीं है, एंड जो डिफरेंस है, जितना लॉस हुआ इन मेकिंग द न्यूक्लियस, that loss is called binding energy. Why is it called binding energy? Because binding energy is the energy that we need to give the nucleus to break it. What is binding energy?
कोई भी सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उतना एनर्जी अपने को देना है उस सिस्टम को टू ब्रेक इट इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियस को अगर मुझे तोड़ना है इनटू इट्स इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, सो आई हैव टू गो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, करेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है इतना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, आई हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो इतना जो डिफरेंस है उतना मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतना ज्यादा एनर्जी मुझे सप्लाई करेगा टू ब्रेक द न्यूक्लियस, so उतना ज्यादा डिफिकल्ट है टू ब्रेक द न्यूक्लियस, ठीक है। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ जनरल न्यूक्लियस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कार्बन 12 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, कार्बन 12 के लिए बाइंडिंग एनर्जी वुड बी, कितने प्रोटॉन्स है, 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 टाइम्स 6 न्यूट्रॉन्स है, c² में कॉमन ले लेता हूं, करेक्ट, 12 माइनस 6 माइनस द मास ऑफ द कार्बन 12 न्यूक्लियस जो दिया जाएगा अपने को क्वेश्चन में इनटू c², ठीक है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ कार्बन 12 न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी को we can also write it as delta m into c². So delta m is called as mass defect, just एक term है। So delta m is basically क्या, अगर c² तुमने कॉमन ले लिया तो delta m है, like this is delta m for, this is the mass defect for carbon 12, ठीक है। Alright, so it's like, you can say it's like the decrease in mass compared to the इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड फाइनल न्यूक्लियस, तो कितना मास डिक्रीज हो, ओके, देख लो। लेट्स लुक एट द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी अपने को सप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रेक इट, एंड टू कंपेयर डिफरेंट न्यूक्लियस तो वी यूज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई एंड 56 आयन 56 पे मैक्सिमम वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, विल स्टिक टू एनसीईआरटी, और कितना वैल्यू है 8.75 मेगा ई-वोल्ट्स, ठीक है। सो अगर तुमको बाइंडिंग एनर्जी पूरा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ऑफ आयन 56, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस इज 8.75 पर न्यूक्लियन इनटू 56, इतना मेगा ई-वोल्ट्स होगा, ठीक है। मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस इज यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। सो व्हाट इज गोना हैपन इज, ये ग्राफ अपने को एक ट्रेंड बताता है कि द न्यूक्लियस विल ट्राई टू, व्हेन रिएक्शन अकर्स, न्यूक्लियस विल ट्राई टू रीच दिस मैक्सिमम, ट्राई करेगा, बिकॉज वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। सो यहाँ के जो न्यूक्लिया है दे विल ट्राई टू फ्यूज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। सो दे कैन ट्राई टू टेंड टू गो टुवर्ड्स दिस मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला वैल्यू, एंड यू कैन इमेजिन अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है तो इट विल ट्राई टू अंडरगो फिशन मतलब वो ब्रेक होगा, सो देयरफॉर इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ऑलराइट, देख लो। लेट्स लुक एट Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सपोज मेरे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, A + B gives me C + D, these are all nuclei, ठीक है। सो वी डिफाइन द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन as the kinetic energy of the products minus the kinetic energy of the reactants. This is the definition of Q value, and energy conservation से it turns out it is also equal to the binding energy, it is equal to the increase in binding energy. So binding energy of products minus binding energy of reactants, ठीक है। ये मतलब अपन याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले हैं Q वैल्यू के। इट इज बेसिकली टेल्स यू कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स लुक एट किस तरीके से क्वेश्चन आता है इस पे। लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। न्यूक्लियस A हैज मास नंबर 220, हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 मेगा ई-वोल्ट्स, ये दिया हुआ है। फिर इट स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लिया B and C of mass numbers 105 and 115, ये दिया हुआ है।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बी एंड सी इज 6.4 मेगा evolts. ठीक है, फाइंड द क्यू वैल्यू. ऑलराइट, सो क्यू वैल्यू क्या बोला मैंने, इट इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो सिर्फ ए है, ए स्प्लिटिंग. ठीक है, तो सिंपल है, ए का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा पर न्यूक्लियन 5.6 और कितने न्यूक्लियन से 220. सो 5.6 इंटू 220 ए का, सॉरी फर्स्ट लेट्स राइट डाउन बी का. तो बी का 6.4 इंटू बी का कितना दिया 105. ठीक है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इंटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्लस सी के लिए 6.4 अगेन इंटू 115 माइनस ए के लिए 5.6 मल्टीप्लाइड बाय कितने न्यूक्लियंस है 220. सो दिस इज योर आंसर. तो यहां पर देखो 105 प्लस 115 इज 220. सी मास नंबर has to be conserved and charge is also conserved. Charge and mass number is basically number of nucleons, है ना. तो अगर 220 न्यूक्लियंस इनिशियली है तो फाइनली अगर एक के पास 105 है दूसरे के पास 115 होना पड़ेगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैज टू बी कंजर्व्ड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स चार्ज आल्सो हैज टू बी कंजर्व्ड, जो अपने को इधर यूजफुल नहीं है. बट मास नंबर अगर क्वेश्चन में बी का मास नंबर 105 दिया होता और 115 नहीं दिया होता, we should have deduced कि C का 115 होगा because total 220 होना चाहिए. alright, so anyway 105 plus 115 should be 220, so 220 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 6.4 minus 5.6, so 220 into 0.8 which is 22 into 8 which is 176. so इतना मेगा evolts इस चीज़ का, इस रिएक्शन का वैल्यू होगा. ठीक है, क्यू वैल्यू बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट कैलकुलेशन अपने को प्रॉपरली करना है. देख लो, देयर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ क्यू वैल्यू जो कभी कभार क्वेश्चन में यूजफुल हो सकता है. सी क्यू वैल्यू क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड होना चाहिए. तो एमसी स्क्वायर वाला जो एनर्जी है वो कम होता होगा, इसलिए दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो आई कैन राइट क्यू एज द एमसी स्क्वायर मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो इतना बेसिकली मास लॉस हुआ है. दिस इज द लॉस इन मास इंटू सी स्क्वायर इज द लॉस इन मास एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एम सी स्क्वायर. एंड ये जो लॉस एनर्जी में जो मास एम सी स्क्वायर वाला जो लॉस हुआ वो किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया. इससे प्रोडक्ट्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा अगर मास कम हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन. द एम सी स्क्वायर एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड दैट डिक्रीज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो क्यू वैल्यू को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन जेई 2023 में आया था, लेट्स टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन. सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. जेई 2023 में आया था, वैसे दिखने में एकदम डरावना लग रहा है, ऐसा बड़े बड़े नंबर से, बट एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है करने को. आई हैव अ न्यूक्लियस ए दैट स्प्लिट्स इनटू बी एंड डी. ठीक है, एंड रिलीजेस सम क्यू एनर्जी. ये लिखने का तरीका है, प्लस क्यू मतलब जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग की सम एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, वो अपना क्यू वैल्यू. तो वो एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो पूछा गया था. ओके, तो ए का मास दिया हुआ है 238.05079 इंटू 931.5 मेगा इवोल्ट बाय सी स्क्वायर. तो ये यूनिट मेगा इवोल्ट बाय सी स्क्वायर इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट इन न्यूक्लियर फिजिक्स बिकॉज आई कैन राइट मास एज एनर्जी बाय सी स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे अपन सी स्क्वायर के टर्म्स में ही बात करते हैं. ऑलराइट, वी डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ कन्वीनियंट यूनिट. एनर्जी बाय सी स्क्वायर हैज द सेम यूनिट्स एज मास. मास ऑफ बी दिया हुआ है, मास ऑफ डी दिया हुआ है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, एंड फाइंड द एनर्जी रिलीज. तो क्यू वैल्यू पूछा गया. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, सो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना है. सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स करना है अपने को. तो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए का मास, मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब दिस प्लस दिस. तो पहले मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. मास ऑफ बी प्लस डी, देखो कितना हो जाएगा यार, बस कैलकुलेशन करना है. So this will become, फटाफट कर लेते हैं, 3, 6 plus 6 2, 1 plus 3 4 plus 2 6, 4 0. ठीक है, एंड 238. चेक कर लो यार सही किया मैंने. ये 3, 6 plus 6 12, 1 plus 3 4 plus 2 6, 4. ये कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन है, मतलब इसमें मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इंटू 931.5 MeV by C square. Alright, and then
I have to do mass of reactant minus mass of product, so this minus this, तो वो कितना हो जाएगा, मेरा Q value will therefore become this minus this, ठीक है. So 9 minus 3 6, 7 minus 2 5, बेसिक सेकेंड स्टैंडर्ड का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. 0 वो कॉमन ले लो, वो 10 minus 6 4, ये 4 0 0, 238 minus 238. देखो सही कैलकुलेशन किया मैंने. 9 minus 3 6, 7 minus 2 5 और 50 minus 46 4, ठीक है, इंटू 931.5 मेगा वोल्ट बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वाला. तो इसलिए ये सी स्क्वायर कट जाएगा. सो दिस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है. अब बेसिकली मेरे पास है, अब इसको मतलब एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया अपने को बस ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो यार मुझे पता है कि ये 1000 अगर रहेगा तो जाके 4.56 मेगा वोल्ट बनेगा, तो उससे 4.56 से तो कम होना चाहिए, ठीक है. तो 4.56 से अगर कम करना है मुझे तो ये ऑप्शन चला गया मेरे पास, ठीक है. नाउ 900 रहेगा, 900 इंटू 456, तो उसका वैल्यू को फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो. 900 इंटू इसको 450 कर दो या 400 कर दो, तो 360 से ज़्यादा, 3.6 से ज़्यादा हो जाएगा, 3.8 से भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 900 इंटू 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 मेगा वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा इफ़ यू डू 900 इंटू 45, करेक्ट. सो देयरफॉर ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा ये आंसर डी. इस तरीके से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करना है, ठीक है. दैट इज व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन टू शो, मतलब फॉर्मूला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आई वांटेड टू शो यू कैसे विदाउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर, ठीक है. देखो, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये लेक्चर देखने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट 2 या 3 साल के कर लो PYQs. दैट शुड बी गुड इनफ because questions tend to get repeated and modern physics is one of the highest weighted chapters, so काफी scoring है. just do last 2-3 साल के PYQs, that will be good enough, ठीक है. and let me know in the comment section if this lecture was useful. अगर हाँ, if the demand is there, if you want, then I will continue this series with more high weighted chapters. एक और अपलोड कर दूंगा मैं, और आगे के चैप्टर्स भी कर लेंगे अपन इस तरीके से, theory and PYQs. so let me know in the comment section. That's it for today. I'll see you at the top. Good night.